गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. चलो बढ़िया. ऑडियो वीडियो ओके. ऑल वेल. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. परफेक्ट. गुड मॉर्निंग सात्विक. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सुमित. तुलसी. गुड मॉर्निंग आयुषी. गुड मॉर्निंग. चलो गुड. एक्सेलेंट. So yesterday we discussed corporate governance. Today we will be discussing CSR. We've seen CSR to be important for pre and the mains both. Very surprisingly, there have been two questions from CSR in the prelims, and mains, of course, we use it in paper 2 and extensively as a way forward in paper 4 as well. And direct questions also come from here in paper 4. Now, this journey from corporate governance to CSR, when we discussed corporate governance yesterday, what we broadly understood was that we have to manage companies better. It is nothing but an application of transparency and accountability. And we have to ensure that the companies run in a manner which is fair. Now, when we discuss CSR and we discussed corporate governance yesterday, there were some key terms that I used yesterday, like independent director, audit committee, nominations committee, clause 49. So I will discuss those key terms and also look at a very specific problem faced by corporates today, which is called insider trading, and then look at corporate social responsibility, which is very easy. Now, corporate social responsibility is now tied up with the concept of environmental and social governance, which today now has your bank, which is called your sustainability reporting, which is mandated by SEBI. This was also asked in the prelims exam, so we have to do this in that context. Thanush, hi. My recommendation would be that you, like today's lecture is a continuation of yesterday's, so just manage a bit and then you can do the backlogs parallelly. Yeah. Okay. Now let's start. We understood the broad domains of corporate governance. We understood the stakeholders and we understood the mechanisms yesterday. Yes or no? Good. Now, one of the terms that we used yesterday was the appointment of independent directors. We understood broadly also corporate structure, that there is generally an MD or a founder, there is a board of directors, there is management, there are employees. That is generally what a corporate structure is. And depending on the nature of debt raised, whether the corporate is listed in the stock market or not. Right? Good. So, who is an independent director? An independent director is a non executive member of the company. Understand this. Non executive member of whom? Non executive member of the company's board. Board matlab board of directors. So, what is about this person that makes this person independent? This person has no material or financial relationship with the company. Okay. It could also mean the management.
So any material or financial relationship with the company or its management that can affect their judgment or that can affect their independence. Okay. What is the primary purpose of appointing independent directors? Is to ensure that there is generally unbiased oversight. You're able to have better scrutiny of company documents and information, and you're also able to protect all interests, including the ones of minority shareholders. Okay. Now, this does not mean independent directors are not paid. They are paid a certain remuneration and they are entitled to certain perks, no doubt. Okay. But at the same time, they do not have a pre existing material or a financial relationship with the company. ठीक है? Now, generally, independent directors are chosen because of their expertise. Their expertise could be, for example, in law, in finance, in management, in accounting, in corporate governance. Okay. And as per the Companies Act 2013, all listed companies, please understand this, all listed companies, which means they're listed on any stock market, must have at least one third of their board of directors to include independent directors. Okay, understood. And certain large unlisted companies, this will be determined on market cap and shareholding value. They must also have at least two independent directors. तो ये लिस्टेड कंपनीज के लिए कंपलसरी है वन थर्ड बोर्ड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में होना, मतलब वन थर्ड ऑफ द बोर्ड हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. और जो लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज होंगी उसमें दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चलेंगे. लिस्टेड कंपनीज में इतना नंबर हाई क्यों है? बिकॉज व्हेन यू आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट you're effectively dealing with money of retail investors. ठीक है? And at the most their tenure is for 5 years and they can have two terms consecutively at max. क्या ये समझ आया? पक्का? This financial relationship also means that you cannot have any significant शेयर होल्डिंग इन द कंपनी एज वेल, नहीं तो फिर तो आप बायस्ड ही हो जाओगे ना, इसलिए. ठीक है? तो ये करते क्या है, इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. दे जनरली चेक, देयर जॉब इज टू इंप्रूव कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी. मतलब रोल बेसिकली ये है. पहला, इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस to improve corporate credibility, transparency, accountability. इनका काम ये है कि बोर्ड के जितने भी डिसीजंस है, they are generally in the best interest of the stakeholders and they're not generally, uh, you know, against minority shareholders, or they are not ignored. You know, management works comprehensively. No absolute ban. No absolute ban. No. Okay. Good.
very important. Let me come to that, Abhinandan. Give me some time. Their job is fundamentally oversight driven. So whenever the board is discussing something in terms of, you know, performance of the management has to be reviewed, financial information has to be reviewed, financial records have to be reviewed, the kind of risks that the company is taking, those have to be reviewed. So they'll give you a very independent point of view. Third is to ensure the interest of the shareholders. देखो कंपनी में किसी के पास तो मेजोरिटी शेयर होगा, किसी के पास माइनॉरिटी होगा, और शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच में भी तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है. शेयर होल्डर बोलेगा कि भाई मेरा पैसा लगा है, मेरे हिसाब से कंपनी को ये इस तरह के डायरेक्शन में काम करना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता आपको कि ये जो डायरेक्शन आप सोच रहे हैं वो सही है, हमें ज्यादा पता है, हम दिन भर काम करते हैं, तो हमको लगता है ऐसे करना चाहिए. तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए जनरली यू विल हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. इनका एक और काम होता है ऑडिट और कंप्लायंस में. अब ऑडिट और कंप्लायंस का क्या चक्कर है? ऑडिट और कंप्लायंस का चक्कर ये है कि कंपनीज में आजकल जो प्रॉपर कंपनीज एक्ट के अंडर बनती हैं, उनमें प्रॉपर ऑडिट कमिटीज बैठती है. उन ऑडिट कमिटीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना जरूरी है. तो जिस तरह से कंपनी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, उनको रिपोर्ट कर रही है, इंटरनली कैसे चेक कर रही है, ये सारी की सारी चीजें कि आर यू इन कंप्लायंस विद द लॉज और नॉट, ये सारी की सारी चीजें वो देखते हैं. एंड मैं ये क्यों अलग से पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज दे हैव अ क्रूशियल रोल इन मॉनिटरिंग CSR परफॉर्मेंस. ठीक है, तो जो कंपनी का CSR पॉलिसी है, प्रोजेक्ट्स जिसमें वो लगाएंगे अपना टाइम रिसोर्सेज, उनको फॉर्मुलेट करने में, उनको मॉनिटर करने में, उनको इवैल्यूएट करने में सबसे सिग्निफिकेंट रोल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होता है. दे हैव टू इंश्योर दैट देयर इज एथिकल कंडक्ट व्हेन परफॉर्मिंग CSR एक्टिविटीज. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? गुड. नाउ these independent directors therefore are agents of, very simply, agents of change and transparency in a country. Okay, now let's understand this a little bit more and let's understand how does this largely work. So technically इसके आंसर अभिनंदन ये है कि yes, a person can be an independent director in two completely different firms, even if they are in two completely different industries. कि एक FMCG इंडस्ट्री है और एक फाइनेंस की इंडस्ट्री है, आप हो सकते हैं. बेसिकली देयर आर रेगुलेटरी लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स. ठीक है, नाउ you cannot be in businesses जहां इनहेरेंटली कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कि आप दो कॉम्पिटिटर कंपनी, मतलब पेप्सी के भी अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और कोका कोला के भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये नहीं हो सकता. ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको कैसे करते हैं. सो टेक्निकली an individual can serve as an independent director in a maximum of 7 listed companies as per the Companies Act. अगर कोई वो इंसान किसी भी लिस्टेड कंपनी में एक फुल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो फिर आप 3 और कंपनीज से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते. ठीक है, ओवरऑल ये है कि आप टोटल 20 कंपनियों से ज्यादा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते, आप 20 कंपनियों से ज्यादा में डायरेक्टर नहीं हो सकते. उसमें से आप समझ लो 10 पब्लिक कंपनीज है. ठीक है, यू कैन बी अ डायरेक्टर इन मल्टीपल कंपनीज, यू कैन ओन मल्टीपल कंपनीज, you can be an independent director in a maximum of 7 public listed companies,
total number of directorships you can hold is 20 and 10 listed companies. Clear? Okay. And you have to still be very sure there are no financial interests and you will be able to work objectively. Are we clear on this? Yes. Good. There is, although ये एग्जाम के लिए relevant नहीं है, but because corporate law is something I'm a little familiar with, there is a concept called board interlock. ठीक है अभिनंदन? तो board interlock का मतलब ये होता है कि a director should not serve on the board of a company where another independent director is on the board of the first company. ठीक है? This is prohibited. This is sort of not allowed. Are we clear on this? ये समझ में आ रहा है? Yes, very similar to Office of Profit. Yes. Good. Yeah. Okay. देखो डेफिनेशन क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की. सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन. इट सिंपली मींस एनी डायरेक्टर हु इज नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है, सिंपल. और मतलब टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देयर इज a very elaborate set of very objective and sometimes very subjective criteria depending on public company, listed company, unlisted company, all of those things. ठीक है? Are we clear on this? Yes or no? Good. Please understand why this is necessary. See, at the end of the day, corporate governance is absolutely essential for the smooth running of a business. And what drives corporate governance in a business is the board of directors, जिसको हम बोर्ड के नाम से जानते हैं. फिल्मों में सुना होगा कि बोर्ड मीटिंग है. बोर्ड मीटिंग, बोर्ड क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. The problem is that the board will face a lot of challenges when you are making some degree of executive decisions, जिसमें आपको ये सारे स्टेक होल्डर्स को बैलेंस करके चलना पड़ेगा. आपके डेटर हैं, सप्लायर हैं, क्रेडिटर हैं, मैनेजमेंट है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, इन्वायरमेंट है, सोशल ऑब्लिगेशन है, 10 तरह की चीजें, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. सो यस बेटा, पॉइजन पिल इज अ फ्रेज दैट यू यूज. पॉइजन पिल को खुद ही सोचो, बता दो 2 मिनट में, फिनिश दिस फर्स्ट. ठीक है, तो इसी को एड्रेस करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में ये सारी चीजें मतलब इंट्रोड्यूस करके इसको फॉर्मलाइज किया गया. और सारे जो इसके डिटेल्ड टेक्निकलिटीज वो सब एक जगह उन्होंने करके लिख के दी. ठीक है, नाउ listed companies हैं तो at least 1/3 of your board has to have independent directors, and unlisted companies are also supposed to comply with section 149, but उसमें आपके लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस कम है. उसमें आपका टर्नओवर रिक्वायरमेंट पे डिसाइड किया जाता है कितने आपके डायरेक्टर होने चाहिए या नहीं. अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बोर्ड पे होना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बोर्ड के पास एक अनबायस्ड और एक ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव होना चाहिए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर ए वाइटल लिंक बिटवीन द कंपनीज मैनेजमेंट, द बोर्ड एंड एनी अदर स्टेक होल्डर, जिससे आप एक हेल्दी बैलेंस बना के चल सकते हो. ठीक है, इनकी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स भी है.
एक इनफॉर्मल सा कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है कंपनीज एक्ट के अंदर ही। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का काम है टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वेरी स्पेसिफिकली इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। And also to ensure that there are some interests of minority shareholders that are sort of protected and preserved. यहां तक समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? प्रॉब्लम कहां पे है कि भाई आप मैनेजमेंट और प्रमोटर्स को जानते हो, बोला है कि आप इंडिपेंडेंट हो, बट आर यू इंडिपेंडेंट रियली? मतलब कई बार होता है कि फॉर एग्जांपल आप टॉप मैनेजमेंट के रिलेटिव्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देते हो, या फिर आप जैसे गवर्नमेंट के साथ आपने कोई बहुत मेजर प्रोजेक्ट उठाया तो उस ब्यूरोक्रेट के रिलेटिव को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देते हो। बहुत सारे प्रॉब्लम है। टू मल्टीपल डायरेक्टरशिप्स, इतना सारा काम कैसे करोगे? तीसरा, at the end of the day they are paid a remuneration, they are paid a fee, so they are compensated for their services. अब अगर पैसा तो कंपनी दे रही है ना, तो भाई जो आपको पैसा दे रहा है आप उसी को आईना दिखाओगे कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, है ना? अब उनकी बात जनरली सुनोगे। और कई बार इनमें डर होता है कि यार मेरा पैसा बंद हो जाएगा, द फियर ऑफ लूजिंग वेरी लुक्रेटिव कॉर्पोरेट ऑफर्स, जिसमें पर्क्स वगैरह भी मिलती हैं। माने कि देयर इज अ कैप ऑन द फीस दैट यू कैन चार्ज, बट पर्क्स वगैरह पे जबरदस्त इनको सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। यस यस यस, एब्सोल्युटली। एंड अभिनंदन, थोड़ा सा ना तो प्लीज कीप अ होल्ड ऑन योर क्वेश्चंस। I don't have to remind you every day that this is not a personal tuition. हम्म? बाकी बच्चे भी चुपचाप पढ़ रहे हैं ना, सब आप ही को तो नहीं पढ़ा रहे। थोड़ा सा बाकियों का भी ध्यान रखेंगे ना, एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एट वंस, इफ दैट्स ओके। और उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सोचने का मौका भी मिलेगा, एंड देयर वेरी गुड चांस आपको आंसर खुद ही चमक जाए। एंड एक्सपर्टीज बोलने के बावजूद भी a lot of independent directors do not have the, जिसको आप कहते हैं नेसेसरी एक्सपर्टीज, एकदम नेसेसरी जो उनके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे इनसाइडर ट्रेनिंग इश्यूज बहुत सारे रिपीट होते हैं। A lot of times जाने अनजाने में they will receive a lot of sensitive information which will compromise their independence, और इसका अब्यूज और मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। Are we clear on this? Do we understand this? Yes. Good. Then कल हम ऑडिट कमिटीज के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली ऑडिट कमिटी एक, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उनमें से कुछ लोगों को मिला के एक स्पेशलाइज्ड कमिटी बनाई जाती है, और इनका काम है ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बहुत क्लियरली चेक करना। दिस इज कंपल्सरी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सेबी का हमने लिस्टिंग वाले रूल्स पढ़े थे, एलओडीआर 2015। इन सब के अंडर एक ऑडिट कमिटी होनी चाहिए। ऑडिट कमिटीज आर कंपल्सरी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज, मार्केट कैप है नहीं है, if you are a listed company, audit committees are compulsory. If you are a public company with a paid up capital of more than 10 crore, सबसे पहले तो मेरे को इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये जरा समझा दो कि पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी में फर्क क्या होता है। पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी और पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में फर्क क्या होता है?
पब्लिक कंपनी होती क्या है, वो ठीक है। अच्छा, ओके। देखो, अब पब्लिक कंपनी, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये इको बढ़ा दूं, 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट। एक पब्लिक कंपनी क्या होती है? एक पब्लिक कंपनी एक लीगली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है खरीदने के लिए। ठीक है? ये कहां पब्लिक खरीद सकती है ये शेयर्स? कैपिटल मार्केट्स में। अभी क्या अलग अलग टाइप के कैपिटल मार्केट्स हो सकते हैं, वो हम देख लेंगे। ठीक है? तो एक एग्जीक्यूटिव टीम होती है जो उस पब्लिक कंपनी के डे टू डे अफेयर्स देखती है। वो अपने स्टॉक जो है एक वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स इन एन ओपन मार्केट उनको बेच सकते हैं। तो जो ओनरशिप है वो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस thousands and millions of individual shareholders as how share companies which are listed through shares are concerned. ठीक है? यहां तक समझ आया? यहां तक पक्का? Good. अब पब्लिक कंपनी में कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है? लेकिन उनको अपना फाइनेंशियल डेटा बहुत क्लियरली पब्लिश करना पड़ता है। पब्लिक कंपनी के पास एक मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। जब भी वो शेयर्स बेचते हैं तो उनको एक डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस देना होता है। शेयर होल्डर्स के पास प्रॉपर वोटिंग राइट्स होते हैं। और पब्लिक कंपनीज को ओवरसी सेबी करता है। And there are largely two kinds of public companies: listed public company and unlisted public company. लिस्टेड कंपनी वो है जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप खरीद सकते हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह से। ठीक है? अनलिस्टेड कंपनी वो है कि ये इनके बेसिकली शेयर स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते। आप बैंक से खरीद सकते हो, बैंक के थ्रू खरीद सकते हो। देर आर डिफरेंट अदर कैपिटल मार्केट्स जिनके थ्रू आप खरीद सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरीली थ्रू अ स्टॉक मार्केट। इतना फर्क समझ में आया? पक्का? अंडरस्टूड? इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम, पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कम से कम आपके पास 3 टोटल डायरेक्टर्स होने चाहिए, बेयर मिनिमम। मैक्सिमम आपको जितने भी रखने हैं आप रख सकते हो। ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? वेरी गुड। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो आगे लाइफ में दिक्कत आएगा। एनीवे, सो ऑल पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल इज मोर देन 10 करोड़, या पेड अप, ये क्या है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो उनको मिला है, इन्वेस्टमेंट जितना है
जो इतने इतना अमाउंट की शेयर्स खरीदे, या फिर एनी पब्लिक कंपनी जिसका 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, ठीक है, एंड एनी पब्लिक कंपनी जिसकी कोई भी एनी फॉर्म ऑफ डेट, आपके पास 150 करोड़ के आसपास से ज्यादा का डेट है। समझ आया? पक्का? गुड। तो ऐसे केसेस में आपकी ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और इन 3 डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेजॉरिटी में होने चाहिए, ठीक है। नाउ chairperson and the majority, they should all be financially literate, मतलब they should be able to read and understand financial statements, and ये 3 डायरेक्टर्स तो मिनिमम है वैसे, एंड एटलीस्ट 2/3, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट 2/3 ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। और इन सब में से कम एक इंसान के पास फाइनेंस की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना समझ में आता है तो बहुत है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट का ओवरसाइट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स क्या हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, सारी की सारी चीजें यहीं पे, ठीक है। विसल ब्लोअर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इंटर कॉर्पोरेट रोल्स, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, कंप्लायंस, सब कुछ इधर ही आता है, सब कुछ, ठीक है। गुड। देर इज ऑल्सो, ये छोटी सी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इज ऑल्सो अ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, एनआरसी बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज अगेन अ बोर्ड लेवल कमिटी, जो सेबी और कंपनीज एक्ट दोनों में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, आपको देनी पड़ेगी, इज टू बेसिकली इंश्योर fairness in the appointments of directors, key managerial positions, senior management, इस तरह से, ठीक है। ये एनआरसी कमेटी जो है, सेम, ये जो एनआरसी कमेटी जो है, इस कमेटी का जो, जिसको हम कहते हैं, मतलब कंपल्सराइजेशन सेम, इनका इसका सेम है, ठीक है। दिस इज 50 करोड़, सॉरी नॉट 150 करोड़, 50 करोड़, एग्जैक्ट सेम। So all listed companies, public companies with a paid up capital of 10 crore, public company with a turnover of 100 crore, and a public company with a debt of 50 crore, ठीक है। अगर इसमें से ऐसा कुछ भी है तो आपको एक एनआरसी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। इट इज लाइक कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, ऐसे ही समझ। सो इस कमिटी में कम से कम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, या फिर a simple way to do this is you should have 3 non-executive डायरेक्टर्स, मतलब जो एक्चुअल डे टू डे काम नहीं कर रहे वो डायरेक्टर्स, एंड इन कम से कम इसमें से आधे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। चेयरपर्सन उस कंपनी का जो है, फाउंडर, चेयर, एमडी, इस कमेटी का हिस्सा हो सकते, लेकिन इस कमेटी को हेड नहीं कर सकते, ठीक है।
जितना भी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल है डायरेक्टर्स का, सीनियर मैनेजमेंट का, रेम्यूनरेशन क्या होगी, परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, क्या हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। ठीक है। Similarly, you have a stakeholder relation committee. This is also established under SEBI and Companies Act. बेसिक सिंपल फंडा ये है कि अगर आपका कोई भी ग्रीवेंस आया है स्टेक होल्डर्स, मतलब एनी स्टेक होल्डर, एनी शेयर होल्डर ऑफ एनी काइंड, तो ये कमेटी का काम है इसको सॉल्व करना, इसको ध्यान से देखना कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यहां तक ठीक है? यहां तक समझ आया? गुड। एंड एक लास्ट टर्म जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आरपीटी। कंपनी और ऐसे लोगों के बीच की डीलिंग, इट्स बेसिकली अ रिलेशनशिप और अ डीलिंग between a company and persons, could be another company also, that have a pre-existing relationship with it. जैसे कोई डायरेक्टर हो गया, कोई मैनेजरियल पर्सनल हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी अरेंजमेंट बिटवीन अ कंपनी and its related parties that can affect the company's resources. ठीक है। ये नहीं है कि ये इलीगल है, बस इसके बारे में आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? मतलब ये वही बात हो गई ना कि आपने खुद को टेंडर नहीं दिया लेकिन घर में चाचा भतीजा को टेंडर दे दी। सेम, एग्जैक्ट सेम लॉजिक। ये समझ आया? बस इतना समझना था जो रियली इंपॉर्टेंट है। यस। तो ऐसे ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, एसआरसी कमेटी लिखेंगे तो देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, कोई उसमें ज्यादा इधर उधर का नहीं पूछेंगे। इट विल बी अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको पता है कि क्वेश्चन जनरल आएगा, लाइक सिटीजन चार्टर, तो हमको एक्सेलेंस चेस करना चाहिए भाई। फिर हमको पीछे नहीं हटना चाहिए कि अच्छा बस काम थोड़ा बहुत चल जाए फिर देख लेंगे, है कि नहीं? चल, तो कल मैं क्लास के बाद सोच रहा था, मैंने कहा यार मेरे को थोड़ा सा वो था कि अब जो कर ही रहे हैं तो जबरदस्ती करके खत्म करते हैं ना बढ़िया तरीके से। तो ये की टर्म्स हो गए। थोड़ा सा मैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में भी डिस्कस करना चाहता बिकॉज दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट दैट यू कैन ऐड इन योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आंसर्स। ठीक है। सीधी सिंपल बात, बस इसको बहुत बेसिक समझेंगे, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें। प्री में भी आने के चांसेस हैं। अगर प्री में सीएसआर पूछ सकते हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग भी पूछ सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है और क्यों हम पढ़े? बिकॉज लास्ट ईयर बहुत लीडिंग बैंक्स के लोगों को आपने इसमें पकड़ा भी था। इट इज ट्रेडिंग इन कंपनीज सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी का मतलब फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब फाइनेंशियल टूल्स, कंपनी शेयर्स वगैरह। ये आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू हैव एक्सेस टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, unpublished sensitive information.
पब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। यस, इसको हम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, इसको हम नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। कि अगर आपको ऐसा कुछ पता है जिसकी वजह से इन कंपनी के शेयर्स ऊपर नीचे जा सकते हैं और जो सबको नहीं पता है या जनरली नहीं पता है, और आपको कुछ सीक्रेट पता है और उसका फायदा उठा के आप कंपनी के शेयर खरीद बेच रहे हैं, तो उसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब, फॉर एग्जांपल आपको अगर पता है कि कल जियो और एयरटेल का मर्जर हो जाएगा, हो नहीं रहा है बट हो जाएगा, आज आपने दबा के एयरटेल के शेयर खरीद लिए, जियो तो महंगा हो गया, एयरटेल के शेयर खरीद लिए, आपको पता है कि कल वो मर्जर अनाउंस होगा। जैसे ही वो अनाउंस हुआ, तब सडनली लोगों को एयरटेल पे भरोसा ज्यादा हो जाएगा, भाई अब तो मिला के आप ही का टेलीकॉम सेक्टर है, तो अगर आप ही का टेलीकॉम सेक्टर है तो आप ही चलाओ, उससे आप देखो कितना पैसा कमा सकते हो, राइट। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, और इसको गवर्न करने के लिए यू डू हैव द कंपनीज एक्ट, बट उससे ज्यादा पावरफुल है हमारा सेबी एंड द सेबी एक्ट 1992। सो क्लियरली, यस क्लियरली ये प्रोहिबिटेड है, और इसके अंडर सेबी जो है पीआईटी रेगुलेशंस बनाता है, 2015 की बनाई हुई है, पिछले साल 10 साल खत्म हुए, इसलिए मैंने इसको लास्ट ईयर भी मेंस में कराया था और इस ईयर भी थोड़ा सा मैं इसको केयरफुल लेके चलता हूँ। द प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस ऑफ 2015, बेसिकली अगर आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है, तो आपको उस कंपनी की सिक्योरिटीज खरीद बेच नहीं चाहिए, आपको ये इंफॉर्मेशन फैलाना नहीं चाहिए, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है किसके पास? इनसाइडर्स के पास। ये इंफॉर्मेशन है किसके पास? इनसाइडर्स के पास। तो अगर ये इंफॉर्मेशन इनसाइडर्स के पास है, राइटफुली सो, हो सकता है, मान लिया, तो ये इनसाइडर कौन है ये भी पता करना पड़ेगा। एम्प्लॉय हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई भी, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स के अंदर आप किसी भी तरह की इस तरह की बेस ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अनलेस लेजिटिमेट पर्पस है, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन को डिस्कस भी नहीं कर सकते। इसके लिए जितना हो सके आपको एक फेयर डिस्क्लोजर पॉलिसी, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट रखना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि माना कि इसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर सेबी है, लेकिन सेबी इज ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड। आजकल मार्केट सप्लीमेंट जो मार्केट सिस्टम्स हैं, उसमें एक इंटीग्रेटेड मार्केट सर्वेलेंस सिस्टम होता है। दे चेक कि सडनली ये प्राइस फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, और ये जो सडनली इतने बल्क में स्टॉक खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, ये खरीद और बेच कौन रहा है, ये किसका इससे रिलेशन है, ठीक है। एंड सेबी इसमें सिविल पेनल्टी, क्रिमिनल पेनल्टी सब परस्यू कर सकता है, इसमें ट्रेडिंग बैन लग सकते हैं, इसमें आप पब्लिकली मतलब इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। हर्षद मेहता का स्कैम इसी पे तो बेस्ड था, यस और नो। एक टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को सेबी ने बैन किया था, क्योंकि उनके सीनियर डायरेक्टर्स के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी
जिसका वो फायदा उठा रहे थे। यस, आईसीआईसीआई लास्ट ईयर। इनफैक्ट हमें लगता होगा कि यूएस का लॉ इसमें स्ट्रिक्ट होगा। इंडिया का जो इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ है वो यूएस के इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ से स्ट्रिक्टर है। यूएस के इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ में इट इज अ नेसेसिटी टू शो ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इंडिया के लॉ में अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, आपने उस इंफॉर्मेशन में कुछ किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको बेचना चाह रहे हो, कुछ नहीं बेचना चाह रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन है तो आप पे लाइबिलिटी है। ठीक है। अब तो कंपनी के लॉयर्स, कंसल्टेंट, सबको एक तरह से इनसाइडर्स में माना जाता है। ठीक है। समझ आया? पक्का? वेरी गुड। नाउ सीएसआर। सीएसआर बहुत आसान है, इसको सिंपल तरीके से करेंगे। पहली बात, ये होता क्या है। दूसरा, इसके क्या डायमेंशंस और क्या स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन इसमें, हु इज रिलेटेड टू सीएसआर। थ्री, सीएसआर का जनरली एवोल्यूशन कैसे हुआ। चौथा, करंटली सीएसआर का क्या फ्रेमवर्क है। पांचवा, हम जिस तरह से सीएसआर इंप्लीमेंट करते हैं उसमें इश्यूज क्या है। सिक्स्थ, उन इश्यूज का सॉल्यूशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे। ठीक है। इसका अगर आपको कभी भी डेटा निकालना हो, सबसे सबसे ज्यादा मतलब अपडेटेड डेटा, मैं आपको एक, आजकल गवर्नमेंट को बहुत मजा आता है ना बात बात पे सीएसआर पोर्टल बनाना। ये लिंक हमेशा अपने पास रखना। ये लो, यहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो राइट बिफोर द मीन्स। ठीक है। मेरे को अगर कुछ अच्छा रिसोर्स मिलेगा मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँ। मैं से छुपाता नहीं ज्ञान। अच्छा है, बहुत अच्छा पोर्टल है, मतलब जस्ट यू कैन टेक हाइलाइट्स फ्रॉम हियर। अब सीएसआर समझते हैं। बेसिकली सीएसआर ये है, सीधी सिंपल भाषा में, और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग से एथिकल एस्पेक्ट भी है कि कंपनीज की एथिकल ऑब्लिगेशन है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करें। कंपनीज आर फंडामेंटली प्रॉफिट मेकिंग,
उस पे वो टैक्स भी देते हैं, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी उस टैक्स देने तक खत्म हो जाती है? टैक्स तो आप अपनी इनकम पे दे रहे हो, लेकिन जो आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, जो आप सोसाइटी में इंपैक्ट लाते हो, आप जो सोसाइटी के लोगों के साथ काम करते हो, आपको वो सारी चीजें बेहतर करने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसीलिए CSR as a modern concept today is central to corporate governance. इसके बारे में यूरोपियन कमीशन ने 2001 में बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां कंपनीज सोशल और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स अपने बिजनेस ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करती है, और जो भी कंपनीज के साथ रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ रेगुलरली वॉलंटरली इंटरेक्ट करती है। हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013 सेक्शन 135, उसमें CSR is mandated. Companies of a certain shape and size have to spend 2% of their average profits. CSR पहले वॉलंटरी हुआ करता था, लेकिन अब मैंडेटरी है इंडिया में। इंटरेस्टिंग बात देखो कि टैक्स देने के बाद भी आपको CSR पे स्पेंड करना है, अगर आपका साइज उतना बड़ा है तो। देखो, CSR को समझने के लिए स्टेक होल्डर्स कौन है? भाई, कंपनी के लिए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो उसका शेयर होल्डर है, राइट? उसको एथिकल गवर्नेंस चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म कंपनी से वैल्यू चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। एम्प्लॉयज आपके शेयर होल्डर्स हैं। आपके एम्प्लॉयज आपको हमेशा चिल्लाएंगे कि बेटा CSR करने का टाइम है, सैलरी बढ़ा देता, चैरिटी बिगिंस एट होम। So employees would always be concerned with fair wages, safe working conditions, inclusion. A very important stakeholder without which companies can't function are customers. They would want sustainable sourcing. They would want product safety, right? Morning, Himang. ठीक है? So customers के लिए product safety, sustainable sourcing, value for money. Communities are a very important stakeholder. उनको लोकल डेवलपमेंट चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इन्वायरमेंट जनरली ओवरऑल इज अ स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर, है ना? तो CSR के सोशल डायमेंशंस भी है, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस भी है, इकोनॉमिक डायमेंशंस भी है, गवर्नेंस डायमेंशंस भी है। आप अगर CSR को सोशली देखो, इट इज अबाउट द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड कम्युनिटीज। आप उसे अगर इन्वायरमेंटली देखो, इट्स अबाउट पोल्यूशन कंट्रोल, इट्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको आप इकोनॉमिकली देखो, सो इट्स अबाउट एथिकल प्रॉफिट मेकिंग, इट इज अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। आप इसको एक गवर्नेंस के स्टैंड पॉइंट से देखो, देयर इज ट्रांसपेरेंसी, देयर इज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ठीक है? तो इंडिया में ये सारी कहानी शुरू होती है 2009 से, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वॉलेंटरी गाइडलाइंस निकाल के लाती है। 2011 में ये गाइडलाइंस थोड़ी सी और
डिटेल होती हैं, दे कॉल्ड नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस। फिर 2012 में सेबी जो है बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग टॉप 100 कंपनीज के लिए मैंडेट करता है। 2013 में कंपनीज एक्ट आता है, सेक्शन 135 आता है, सीएसआर लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है। सीबी बीआरआर जो टॉप 100 के लिए था, सीबी इसको 2015 में टॉप 500 के लिए एक्सपैंड करता है। इंडिया की पहली फर्स्ट हाई लेवल कमेटी ऑन सीएसआर बनती है, फिर दूसरी बनती है। 2020 आते आते यह वो सेकेंड हाई लेवल कमेटी, एंड फाइनली इन 2021 सेबी recommends BRSR गाइडलाइंस, जो आया था ना पिछले साल प्री में, फॉर द टॉप 1000 कंपनीज। ठीक है, सेक्शन 135, BRSR इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। पहले पहले इसको बोलते थे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, BRR। यहां तक इसको बोलते थे BRR। अब ये BRR हो गया है BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। ठीक है, Good. अब सीएसआर के फ्रेमवर्क को समझो। कहानी शुरू होती है कंपनीज एक्ट 2013 से। इसके सेक्शन 135 में लिखा है, कोई भी ऐसी कंपनी जो, तीन ऑप्शंस हैं, या तो कंपनी का जो नेटवर्थ है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़, या तो इनका जो टर्नओवर है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 करोड़, या तो इनका जो नेट प्रॉफिट है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 करोड़। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट विच इज एन एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years, टैक्स देने के बाद उतना आपको सीएसआर एक्टिविटी पे करना पड़ेगा। अगर आप ये पैसा खर्च करते हो तो करते हो सीएसआर एक्टिविटीज पे, अगर आप ये खर्च नहीं करते तो इतना पैसा शेड्यूल 7 में कुछ चीजें लिखी गई हैं उसमें आप पे ट्रांसफर, उस फंड में आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ आया? अगर आपने ये फंड में भी ट्रांसफर नहीं किया तो कंपनीज पे 1 करोड़ की पेनल्टी और ऑफिसर्स पे 2 लाख की पेनल्टी लग सकती है। शेड्यूल 7 में यू विल जनरली हियर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है,
पीएम केयर्स इसमें आता है, ग्रीन गंगा इसमें आता है, स्वच्छ भारत कोष इसमें आता है। बिल्कुल ठीक है। BRSR किसका है? सेबी का है। ये क्लियर है ना? BRSR इज ऑफ सेबी। ठीक है। इसके अलावा कुछ इनकम टैक्स में भी इसके सप्लीमेंट्री प्रोविजंस दे रखे हैं। इनकम 961 कि सीएसआर में खर्चा करने के लिए आपको कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा अनलेस आप कोई नोटिफाइड फंड में पैसा डाल रहे हो तो, जैसे पीएम केयर्स। ठीक है, गुड। अब हमारे लीगल फ्रेमवर्क के साथ बेसिक इश्यूज क्या है? प्रॉब्लम आप देखोगे सबकी सिमिलर ही है। कुछ हमारे लीगल इश्यूज है। अब लीगल इश्यूज क्या है कि भाई आपने ये ओवर रेगुलेट कर दिया है, जबरदस्ती की नोटिफिकेशन, 4 तरह के एफएक्यू, बहुत सारे अमेंडमेंट्स, जो एलिजिबल एक्टिविटीज है वो उसमें क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या मैराथन में पैसा डाल सकते हो कि नहीं। चैरिटेबल डोनेशन को आप एक साल बोलते हो सीएसआर है, दूसरे साल बोलते हो नहीं है। तीसरा, आप इसमें R&D में जनरली इसको आप डिस्क्वालिफाइड रखते हो ना। R&D से तो बिजनेस ही बेटर होगा, समाज ही बेटर होगा। सो अनलेस कोविड स्पेसिफिक नहीं है तो R&D इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट काउंटेड एज सीएसआर। ठीक है। दूसरा, इसमें गवर्नेंस इशू भी है। मैक्सिमम सीएसआर स्पेंडिंग जो हो रही है वो ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइज स्टेट से हो रही है, जैसे महाराष्ट्र हो गया जो, और वो लोग खर्चा भी अपने ही स्टेट में कर रहे हैं। भाई महाराष्ट्र की कंपनी महाराष्ट्र में ही तो अपना सीएसआर का पैसा लगाएगी, यस और नो? सिक्किम में जाके क्यों लगाएगी? उसको फिर महाराष्ट्र में पेट्रनेज मिलेगा, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा, लोग खुश होंगे, वो क्यों करेगी सिक्किम में जाके? राइट, गुड। तो इसकी वजह से जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको 1-2% से ज्यादा टोटल सीएसआर फंड ही नहीं मिलता इंडिया का। तीसरा, इसमें से बहुत सारा पैसा तो आप गवर्नमेंट स्कीम में डाइवर्ट कर देते हो। क्लीन गंगा हो गया, जिसको हम कहते हैं पीएम केयर्स हो गया। सीएसआर का पॉइंट क्या था कि कंपनी अपने से पैसा निकाल के अपने एरिया की स्पेशलाइजेशन को बढ़ाए, लोगों को ट्रेन करे, लोगों की जिंदगी बेहतर करे। राइट। There are also going to be problems with respect to some administration. अब हर कंपनी फॉर प्रॉफिट तो नहीं होती ना। अब जैसे जीएसटीएन है, आईसीआई, आईआरसीटीसी है, आर दे फॉर प्रॉफिट कंपनीज? नो, they are non-profit companies. They have been set up under the Companies Act. लेकिन because they are non-profit companies, they still companies under the Companies Act, इन पे भी सीएसआर लगेगा। आप सीएसआर से दवाई और लैपटॉप खरीद के नहीं दे सकते, उनको कहते हैं कि ये सब्सटेंटिव नहीं है, आपको इन्वॉल्व होके काम करना पड़ेगा। ठीक है। So there are a lot of legal issues, governance issues, and administrative issues. Nowadays, you have a lot of people who are CSR consultants. If you look at the data today, the data is outstanding. In financial year 23, 24, 25 का भी data आया नहीं है. There were about 27,000 companies which were eligible for CSR, and about 35,000 crores has been spent on CSR across all 40 states, but not equally. And about 60,000 CSR projects have been undertaken
in mostly about 10 to 14 government, in 10 to 14 sectors. PMNRAF, Swachh Bharat, health and sanitation, etc. etc. ठीक है. Are we clear? Environment is one of the highest areas. 3,500 crores was spent. 3,500 crores. Rural was also very, very high, 2,500 crores. Highest is health, hunger, poverty, malnutrition, safe drinking water and sanitation. 9,000 करोड़ रुपए पिछले साल खर्च किया. 9,000. Top CSR companies: HDFC, Reliance, Tata Consultancy, ONGC, Tata Steel, Infosys, Indian Oil, Reliance Jio, ITC and ICICI, in that order. HDFC का लास्ट ईयर का CSR ऑब्लिगेशन 900 करोड़ था और मैक्सिमम CSR आपका महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में, फिर दिल्ली में, फिर यूपी में, as you can clearly see in terms of geographical location. What is very interesting is more people, more companies have spent more than they had to on CSR. जो कर रहे हैं वो 2% से ज्यादा भी कर रहे हैं और ज्यादातर लोग 2% से ज्यादा कर रहे हैं. ठीक है. And of course 80% of CSR comes from non-government companies. It comes from private companies. ठीक है. Clear? So Tata Group, Unilever, Mahindra and Mahindra ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, नन्ही कली, which was established गर्ल एजुकेशन के लिए. सबसे खराब इज, फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज वेदांता. वेदांता ने हॉस्पिटल्स और टेम्पल बनाए ट्राइबल कम्युनिटीज को हटा के CSR के नाम पे. वोक्सवागन खुद तो बड़ा ग्रीन एनर्जी कर रहे थे और खुद की जब चांस आई दे वर चीटिंग ऑन द एमिशंस टेस्ट. वोक्सवागन पे बहुत बड़ा फाइन हुआ था. ब्रिटिश पेट्रोलियम, यूके, शेल तो खैर अब तो इंडिया में शेल नाम का तो आपको मुश्किल से एक दो कहीं कुछ दिख जाए. ठीक है. तो आपको CSR लॉ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बॉस. It has to focus on process, transparency, disclosure, micro regulation. और आपको you have to follow a negative list approach. What is a negative list approach? A negative list approach is, मुझे सिर्फ ये मत बताओ कि CSR क्या नहीं है. एक political donation is not CSR. मुझे बस इतना बताओ कि क्या CSR नहीं, बाकी मेरे पे छोड़ो, मेरे को थोड़ा सा ओपन टाइम दो, फ्लेक्सिबिलिटी. तीसरा, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन. People must be engaging with communities and asking कि भाई आपको चाहिए क्या. और सारी CSR एक्टिविटीज का टैक्स डिडक्शन रखो तो थोड़ा सा और इंसेंटिव मिलेगा. एक नेशनल पोर्टल रखो ताकि CSR एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना हो. और ये जो BRSR की गाइडलाइंस है, दे शुड बी मर्ज्ड विद CSR टू क्रिएट अ CSR इंडेक्स कि आप में से कितने लोग इस तरह से काम कर रहे हैं. आर वी क्लियर? ये जो BRSR है, इट इज नथिंग बट अ रिपोर्टिंग फॉर्म जो सेबी ने 2021 में दिया था. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 1000 कंपनीज को ये करना ही करना है.
Are we okay? Are we clear? Yes. Good. अभी BRSR रिपोर्ट्स बहुत कंपनीज की आई हैं इनफैक्ट। आई रिमेम्बर दिसंबर में या जनवरी में दो तीन थे, मतलब काफी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे, वेस्ट जनरेटेड रिपोर्ट्स, परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, ट्रेनिंग आवर्स पर एम्प्लॉय, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स थे। एंड देयर इज आल्सो एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस व्हिच इज द बेसिस ऑफ इट, कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका एनवायरमेंट, सोशल या गवर्नेंस इम्पैक्ट क्या है। ईएसजी जो है उसका यूज आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए करते हैं। सीएसआर एक कॉर्पोरेट इनिशिएटिव है फॉर कम्युनिटी इम्पैक्ट। फर्क समझ में आ रहा है? ईएसजी इन्वेस्टिंग समझ में आ रही? ईएसजी इन्वेस्टिंग होती है क्या? थ्री कोर फैक्टर्स: environmental, social and governance, to evaluate the sustainability and the ethical impact of an investment in a business. मैं अगर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, मैं अगर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो लेबर राइट्स पे क्या होगा, मैं अगर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या ये साउंड, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स के हिसाब से चलता है कि नहीं। इससे हर कंपनी की ईएसडी स्कोर्स बनते हैं। ESG investing has become really big. There are more than $30 trillion under global assets under ESG management. Are we clear? Do we understand this? And ESG scores are generally used by rating agencies also, because this will also help investors invest better in these companies. Clear on this? Yes or no? तो BRSR इंडिया का मैकेनिज्म है टू इम्प्लीमेंट स्टैंडर्डाइज्ड ईएसजी रिपोर्टिंग। अब ये समझ में आया? BRSR captures ESG reporting standards in one place. Now do we understand why it is all linked together? So BRSR is nothing but India's mandatory framework for ESG reporting by the top listed companies. ESG is a broader global standards to see how the company generally function. Are we clear on this? Yes or no? Good. ठीक है, बढ़िया। Let's pick up non-state actors and welfare models and finish it up. चलो, see you tomorrow. Bye bye. अभी मैं नोट्स डाल दूंगा यार, MCF 3 वालों को नहीं पहुंचे होंगे। पढ़ेंगे यार सब एक एक चीज। एग्जाम का पैटर्निंग होता है, बिल्कुल बात कर सकते हैं। सच बताना, सच दिल पे हाथ रख के बताना। ESG, BRSR, CSR पढ़ाया था पेपर 3 वालों ने? दिल से बताना, पढ़ाया था ढंग से? जब एग्जाम में आ रहा है तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं कर देता हूँ चंदन। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसका कोई नहीं होता उसका GS पेपर 2 होता है। ये सब हमारे सर पे चढ़ गए, सब मिल के निकल जाते, पता है कि ओ दिस इज, दिस इज करंट अफेयर्स, दिस इज इकोनॉमिक सर्वे, it is all that, it's all.
आके बैठ के पढ़ो तो। वो हम तो है ही कि बेटा, हम तो कहीं नहीं जा रहे। जब तक सब कुछ नहीं पढ़ेंगे तब तक मेरे को चैन नहीं मिलता है। 100%। चलो, सी यू गाइस, बाय बाय।